Dear student, today I am going to describe a very beautiful poem named Asleep in the Valley, written by Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud was a French poet, was born October 20, 1854. The given poem, Asleep in the Valley, is also known as The Sleeper in the Valley, and the poem is about the futility of the war. Now come to the point. A small green valley where a slow stream flows. There was a small but green valley where a slow stream flows. There was means a stream was flowing through it, and leaves long strands of silver on the bright grass. It means there were green grasses on both sides of the shore, and the shore was looking white because of the flow of the river from the mountain top. Streamed the sun's rays, and the rays of the sun was coming to the valley from the top of the mountain. They fill the hollow full of light. Hollow here it means the valley. They fill the hollow full of light, and the rays of the just because of the rays of the sun, the valley was filled with light. A soldier very young lies open mouthed. Now, next paragraph. There was a soldier who was very young. He was lying in that green valley, and his mouth was opened. A pillow made of fern beneath his head, and his head means the head of the soldier, was on the fern, as if it is a pillow. Asleep, and he was sleeping. The soldier was sleeping in that valley, stretched in the heavy undergrowth, and his full body was you can say that his full body was stretched into that beautiful valley. Pale in his warm green sun-soaked bed. Pale means पीला होता है. And his body looks like pale green sun-soaked bed. Sun-soaked bed मतलब sun-soaked bed here it means on which ground he was sleeping, he was lying, that was very warm due to the rays of the sun. Okay. His feet among the flowers. While he was lying in that valley, his feet were touching the flowers. He sleeps. He was sleeping without any anxiety. His smile is like an infant's मतलब जो छोटा बच्चा होता है. And there was a beautiful smile on the face of that lying soldier, and the smile of the soldier was compared to an infant's smile because his smile was gentle and without guile. Without guile means बनावट रहित, means his smile was original. We can have a duplicate smile on our faces, but an infant or a child cannot have it. Ah, nature, keep him warm. He may catch cold. The poet requested to the nature to keep the body of the soldier warm because he may catch cold. The humming insect don't disturb his rest. Humming insect means an insect making a droning noise. Even an insect
was not disturbing soldier's rest. He sleeps in sunlight. The soldier was sleeping in sunlight, one hand on his breast, and the one hand of the soldier was on his breast, at peace. And he was at peace means he was sleeping without any tension, without any anxiety. In his side there are two red holes. But when the poet Arthur Rimbaud looks closely, he found two red holes in his body. That proves that he was shot in any war. Now the poem is closed, the poem is finished. We can take a lesson, a very good lesson from this poem, that we cannot get any kind of profit by involving in any kind of war. So I am going to explain it in Hindi also. इस अस्लीप इन द वैली इसके पोएट जो है आर्थर रिम्बाउड है, जो फ्रांस में पैदा हुए थे 20 अक्टूबर 1854 में। और यह जो है पोएम हमें यह बताता है कि युद्ध लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लाइन बाय लाइन अब व्याख्या करेंगे। अ स्मॉल ग्रीन वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज। एक छोटी सी घाटी थी, वैली थी जो बड़ी हरी भरी थी, और वहाँ से एक झरना जो है वह बह रहा था। एंड लिव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। और नदी के दोनों किनारे हरे भरे घास थे, और नदी का पानी जो है ये बड़ा ही सफ़ेद दिख रहा था। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही थी। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन रेज, वही मैंने बताया। दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट। और पर्वतों के ऊपर से जो सूरज की रोशनी उस घाटी पे पड़ रही थी, जिसके कारण उस घाटी में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ। एक सोल्जर, एक योद्धा जो बहुत नौजवान था, जिसका मुंह खुला हुआ था, उसी घाटी में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड। और एक उसका सिर जो है फर्न माने एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें फूल नहीं होता है और पतली पतली पत्तियां होती हैं, उसका हेड जो है उसी फर्न ऐसे ही पौधे पर था। ऐसा लगता हो कि मानो यह एक पिलो, यह तकिया का काम कर रहा हो। अस्लीप, वह सो रहा था। स्ट्रेच्ड इन द हैवी अंडरग्रोथ। उस पूरे वैली में वह अकेला जो है वह सो रहा था। उसका बॉडी जो है स्ट्रेच्ड था। पेल इन हिज वार्म। और गर्मी के कारण उसका चेहरा जो है, उसका बॉडी जो है थोड़ा सा पीला पड़ गया था। ग्रीन सन सोक्ड बेड। ग्रीन माने हरी भरी घास वो उस वैली में थी ही। सन सोक्ड बेड का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे सूरज की रोशनी जो है वह ज़्यादा पड़ती है, वह जगह गर्म हो जाता है, और उसी जगह पर वह सोया हुआ था। हिज फीट अमंग द फ्लावर्स। उसके पैर जो है फूलों के बीच में थे। हिज स्लिप्स, वह सो रहा था बिना किसी टेंशन के। हिज स्माइल इज़ लाइक एन इन्फेंट। और एक मुस्कुराहट जो उस सोल्जर के चेहरे पर थी, उस मुस्कुराहट की तुलना कवि आर्थर रिम्बाउड ने एक छोटे बच्चे की मुस्कुराहट से की है। क्योंकि छोटे बच्चे की मुस्कुराहट बड़ी जेंटल होती है और बिना किसी बनावट की होती है। बड़े तो झूठ मूठ का मुस्कुराते हैं, उनके दिल में नफ़रत रहती है, लेकिन चेहरे पे झूठ मूठ का मुस्कुराहट रहती है। आह नेचर कीप हिम वार्म, ही मे कैच कोल्ड। और जब कवि आर्थर रिम्बाउड सोल्जर को इस अवस्था में देखता है तो वह नेचर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बॉडी को गर्म रखो, नहीं तो उसका बॉडी जो है, उसकी बॉडी को ठंड लग जाएगी। भाई यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री में तो स्नोफॉल होता रहता है, तो ज़्यादा ठंड लगने से आदमी की मौत भी हो सकती है। द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। और जो इंसेक्ट थे, भिनभिनाने वाले जो पतंगे थे, वह सोल्जर के आराम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, अर्थात सोल्जर को सोने में कोई भी परेशानी पैदा नहीं कर रहे थे। ही स्लिप्स इन सनलाइट। वह सूरज की रोशनी में सो रहा था। वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट। और उस सोल्जर का एक हाथ जो है
वह उसके सीने पर था। एट पीस, वह एकदम शांति से सो रहा था। इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स। जब कवि आर्थर रिम्बाउड सोल्जर की बॉडी को अच्छे से देखता है तो उसके बगल में उसे 2 लाल लाल छेद दिखाई देते हैं। आर्थर रिम्बाउड को ये समझ में आ जाता है कि ये सोल्जर जो है मर गया है, इसे किसी युद्ध में गोली मारी गई है। पोयम जो है ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस पोयम से एक बातें हम बड़ी अच्छी सीख सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के युद्ध से, झगड़े से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें शांति से अपना जीवन जीना चाहिए और युद्ध से हमेशा बचना चाहिए। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जय हिंद।